Today we are going to do brief discussion on historical background of cell, cell theory, prokaryotic and eukaryotic cell. With the invention of the microscope and its improvement led to the electron microscope, and it revealed all the structural details of the cell. Moving towards the historical background. Robert Hooke discovered cell in about 1665 in 17th century. He is also known as father of cytology. He used the cork of the plant Quercus suber for his study. He took the cork, sliced it and kept under the microscope and saw. He saw that the structure showed honeycomb structures or hollow rooms or little rooms. Means there were rooms, or we can say little rooms were forming the cork, but he did not see any living cell. His work was published in Micrographia. He is also known as pioneer of microscopic anatomy, which means with the help of microscope we can see the internal structures. Here we can see the photograph of Robert Hooke and his book named Micrographia, having the title of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses. In the next slide, we can see the structure which he saw through the microscope, having the honeycomb structures or little rooms, but they were not the living cells, and probably this was the microscope from which he did his studies. Moving towards next scientist, it is Anton von Leeuwenhoek. And Anton von Leeuwenhoek is famous to see, or the first man to see, the free living cells in microscope. Robert Hooke did not saw the free living cells. He saw the dead cells of the cork plant. But Anton von Leeuwenhoek is credited for seeing the free living cells in the microscope. Although Anton von Leeuwenhoek was not we can say a scholar or researcher, whereas Robert Hooke was the fellow of Royal Society, but Anton von Leeuwenhoek was interested to see under the microscope and discover various things. He took the rainwater from the soil. He didn't took the direct rainwater. He took the rainwater from the soil, made a slide and saw under the microscope. What did he saw? He saw small animals and called them wild animalcules. He saw small animals and called them wild animalcules. Actually, he saw rod-shaped bacteria at that time. He saw rod-shaped bacteria at that time. This was the discovery of living cell. Other work which he did was on sperm. He discovered sperms, RBCs, protozoa, and he demonstrated all his work in his book, The Secrets of Nature. Here we can see the photograph of Anton von Leeuwenhoek. The microscopic observations which were done by Anton von Leeuwenhoek, which we told earlier, in sperm cells, in red blood cells, white blood cells or bacterial cells. Now, moving towards cell. The best example which show that one cell can do all the functions required to live. Means one cell can do respiration, excretion or digestion. These all functions are done in unicellular cells.
means they have independent existence and perform the essential functions which are required for surviving in the life. Now, moving towards cell theory. What is cell theory? French scientist Dutronchet gave the idea of cell theory in 1824. We must know that the first cell, which was non-living cell, which was discovered in 1665. Then after that, the concept of cell theory came in about 1824. See how much years difference here it is. Means although the non-living cell and the work of Sir Robert Hooke and Sir Anton von Leeuwenhoek were about in 1600s, but after so much time, now the cell theory was going to be discovered, or it was going to be more in strong positions. He first time indicate the tissues are made by union of cells, मतलब कि उत्तक जो है वो कोशिकाओं के यूनियन से मिलकर बने हैं. बट सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करने का क्रेडिट जो है वो जाता है मैथियस जैकब शिल्डिन और थ्योडर श्वान को. मैथियस जैकब शिल्डिन और थ्योडर श्वान. सेल थ्योरी जो है वो 1839 में प्रपोज की गई थी. हियर वी कैन सी द photographs of Schildin and Schwann. Now, moving towards our cell theory. हमने पहले ही बोला कि सेल थ्योरी का जो क्रेडिट है वो शिल्डिन और श्वान को दिया जाता है, और हमने ये भी बताया था कि कितने सालों के गैप के बाद में वापस से हम सेल की तरफ मूव किए कि सेल जैसा स्ट्रक्चर भी कोई प्रेजेंट होता है. इन 1838 मैथियस शिल्डिन, और कौन थे वो? अ जर्मन बॉटनिस्ट वनस्पति शास्त्र. उन्होंने प्लांट्स में ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट. थ्योडर श्वान 1839 में, उसी टाइम में, अबाउट ऑलमोस्ट एट दैट टाइम, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, मतलब मैथियस शिल्डिन तो थे जर्मन और वो बॉटनिस्ट थे, और थ्योडर श्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. ठीक है, जो कि एनिमल सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पर स्टडी कर रहे थे. उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि जो एनिमल सेल्स होती है उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उन्होंने एक बात और कंक्लूड की कि सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल and a plant cell. That animal cell do not consist a cell wall. कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है. इस बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ दिस, श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस. उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, कि एनिमल और प्लांट बॉडी जो है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है. कि एनिमल की बॉडी और प्लांट बॉडी कोशिका और कोशिका के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलकर बनती है. उसी टाइम पर जो दूसरे लोग कहते थे कि अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से में जाते हैं कि ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म की तरफ, तो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि ऐसा बोलते थे कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई आपने कोई पसीने वाले कपड़े हैं और उनके बीच में आपने कोई अनाज रख दिया है तो थोड़े दिन बाद में उसमें से चूहा निकल के आ जाएगा. ठीक है,
तो इस उसी टाइम में जब सेल की डिस्कवरी चल रही थी, सेल थ्योरी बन रही थी, उसी टाइम पर कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू डेवलप होते हैं। लेकिन उसी टाइम रुडोल्फ विर्चो नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने बोला, उन्होंने एक्सटेंड की सेल थ्योरी को और उन्होंने सजेस्टेड एक एडिशनल फीचर कि ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्व वाली कोशिकाओं से मिलकर बनती है। और उन्होंने इसको एक बहुत ही फेमस लाइन दी जिसको हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ये पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुली का मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये किसने दिया था? ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेल लीनिएज। अब ये तो हम सेल बायोलॉजी की बात करें, सेल थ्योरी की बात करें। अब ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भाई हमने रॉबर्ट हुक की बात की, रॉबर्ट हुक ने हमें बताया, हमें एक सेल जैसे कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे कि हाँ भाई कुछ बॉडी जो है वो इन कंपार्टमेंट से मिलकर बनी है, लेकिन उन्होंने तब उस टाइम पर लिविंग सेल्स को नहीं देखा। बाद में आए एंटोन वॉन ल्यूएनहुक। एंटोन वॉन ल्यूएनहुक ने लिविंग सेल्स को देखा, उन्होंने लिविंग सेल्स से को बताया। फिर कुछ सालों बाद में आई हमारी सेल थ्योरी। इसमें शेल्डिन और श्वान जो हैं बॉटनिस्ट हैं, एक जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के कंपोनेंट से मिलकर, सेल प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक बात हो गई। फिर आए हमारे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक और ऐड किया कि सारे सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुली। लेकिन उस टाइम तक दूसरे जो लोग थे जो इस थ्योरी को नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो रहे हैं। तो इस बात को धक्का दिया किसने? एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था लुईस पास्चर। और इन 1862 उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और उससे क्या हुआ? ए बायोजेनेसिस हाइपोथेसिस को धक्का लगा। ए बायोजेनेसिस मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का डेवलप होना। एज वी कैन सी इन दिस स्लाइड कि उन्होंने एक स्वान नेक फ्लास्क ली जिसमें कि जो ट्यूब है वो मुड़ी हुई है। उनको जो दूसरे जो उनके ऑब्जेक्शनरीज थे उन्होंने बोला कि आप हमें ये प्रूव करके बताइए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने है ना जो भी उन्होंने मटेरियल लिया अंदर, उन्होंने मटेरियल लिया और फिर उसमें उसके अंदर वो जो फ्लास्क थी उसकी जो ट्यूब है उसको टेढ़ा कर दिया। उससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ मतलब फॉर एग्जांपल एयर और एयर के साथ में कोई भी मटेरियल जो है वो अंदर के मटेरियल के साथ में मिक्सअप नहीं हो पा रहा था। तो डायरेक्ट ओनली एयर ही जा पा रही थी और फ्रेश एयर जा पा रही थी और उससे यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ पर ये फ्लास्क को तोड़ा, यहाँ पर इन्होंने जब फ्लास्क को तोड़ा तो जो मटेरियल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया एटमॉस्फेयर के, और जो एटमॉस्फेयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इस जो भी सॉल्यूशन है उसके ऊपर ग्रो करने लग गए। तो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट ने रुडोल्फ विर्चो को भी हेल्प की। हियर वी कैन सी द फोटोग्राफ ऑफ द साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। आज की तारीख में या आज की डे में हम सेल थ्योरी के बारे में क्या अंडरस्टूड करते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए? सेल और उसके प्रोडक्ट से। और जो रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
अब व्हाट इज इन द सेल, सेल के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर क्या है। अगर हम एक टिपिकल प्लांट सेल की बात करें तो टिपिकल प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट जो भी वॉल है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और इट इज़ आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल की जो होती है आउटर मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। इसमें आप बोल सकते हैं कि सेल वॉल जो है बाहरी आउटर मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। और ये मैंने पहले भी बताया कि ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल डू नॉट कंसिस्ट सेल वॉल बट प्लांट सेल कंसिस्ट सेल वॉल। अब सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। अब हम ये बोले कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। सेल जो है वो दो टाइप की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब ओल्ड या पुराना, और कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि ओल्ड टाइप का या प्रिमिटिव टाइप का, जिसे हम एक्चुअल वर्ड इज प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो एनिमल्स कहलाते हैं या वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। मतलब कि इनकी जो न्यूक्लियस आप बोल दें कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब वही न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिज्म में जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बाउंड होती है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम्स, क्रोमा मतलब कलर और सोम मतलब बॉडी, वो स्ट्रक्चर जो कि कलर ले सके। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कितनी बार हम माइटोसिस की स्लाइड्स बनाते हैं तो हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एसिटोकार्मिन से स्टेन करते हैं। तो क्रोमोसोम्स मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि कलर ले सके, और सोमा मतलब बॉडी, ठीक है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल डीएनए। क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक मटीरियल डीएनए। सेल दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वेयर सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, ये भी बता चुकी हूँ। ऑल द बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। नाउ इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, या आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के साथ में जो प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया प्रोटोप्लाज्म, और आपने न्यूक्लियस को हटा दिया तो उसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पर सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है ये पाई जाती हैं, occur in to keep the cell in living state। अब न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल में जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, न्यूक्लियस तो है ही है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एट्सेट्रा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिनमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक जिनमें कि एडवांस टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है,
प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, डीएनए विथ हिस्टोन पाया जाता है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड दूसरे ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज मतलब कोशिकांग, 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 कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ना राइबोसोम्स, इसके अलावा राइबोसोम्स जिनको हम ऑर्गेनलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इम्पोर्टेंट, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होते हैं जो कि बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। विदिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, रेटिकुलम पर भी पाया जाता है। ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसको हम सेंट्रोजोम बोलते हैं, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीज़न में, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। Now, moving towards the structure of prokaryotic and eukaryotic cell, जैसे हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये जो न्यूक्लियस का एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस का जो एरिया है इसको हमने न्यूक्लियोइड बोला है। ठीक है। ये फ्लैजिला आपको दिख रहा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम जैसा हमने बताया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाई जाती है। अब ये आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? ये है एनिमल सेल, क्योंकि इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा है, इसमें आपको वैक्यूल नहीं दिख रहा है, इसमें आपको सेल वॉल नहीं दिख रही है। तो ये क्या है? ये यहाँ पर जो यूकैरियोट है ये एनिमल सेल का है, एनिमल सेल का डायग्राम है, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहा है, एक न्यूक्लियस दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, अंदर न्यूक्लियोलस भी दिखा रखा है ना। ये है प्लांट्स जिसमें कि आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा वैक्यूल आपको दिख रहा है, इसमें आपको सेल वॉल दिख रही है, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। और ये क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें आपको गोल्जी बॉडी भी दिख रही है, स्मूथ ईआर भी दिख रहा है, SER, रफ ER भी दिख रहा है, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके, तो एक तो हु इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट नॉन लिविंग सेल, और जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कौन से प्लांट का कॉर्क यूज़ किया था अपनी स्टडी के लिए, उन्होंने अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस थे वो किस में पब्लिश करवाए, फर्स्ट लिविंग सेल माइक्रोस्कोप में देखने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, या द सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक किसके द्वारा
लिखी गई है। सेल थ्योरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुली के बारे में किसने बताया था? एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ कि थियोडोर श्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि उन्होंने सेल वॉल का कैरेक्टर बताया था प्लांट सेल में। तो ये भी कभी कभी आपको मतलब ऐसा पूछ सकते हैं कि सेल वॉल इज़ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, ये किसने कंक्लूड किया था, या सेल थ्योरी में ये किसने कंक्लूड किया था? लेकिन आप ये प्लांट सेल जानकर इसको जर्मन बॉटनिस्ट के नाम मत कर दीजिएगा। ये थे अपने थियोडोर श्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जिन्होंने ये कंक्लूड किया कि सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। लॉ ऑफ सेल लीनिएज के बारे में बताइए। अब यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड, और नेम द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक सेल and non-membrane bound organelles in eukaryotic cell. What is the difference between plant cell and animal cell? So please listen to this video, and thanks.